Welcome to Wellbeing Wednesdays with Harvinder Narula on BW Wellbeing World. Today, my special guest is Loveleen Kaur. She's a nutritionist qualified with MSc in Food and Nutrition, and she has helped more than 12,000 people lose weight. Loveleen is acclaimed as North India's most trusted dietitian and lifestyle coach. Welcome to BW Wellbeing World, Loveleen. It is such a pleasure to have you with us today. Thank you so much. It's a great honor to be here with you. Thank you. People who have experienced success like you have, they have something which is different from others. And there's always a story behind, how they got to do what they are doing today. So, is there a story behind your journey? Well, I am not different from anyone. I believe that I am a normal Desi girl actually, because that's why people can relate with me. So, well, what my story is not like just say the people, they always quote their self as a success story कि मेरे साथ कुछ हुआ and then I realized this thing और फिर मैंने ऐसे किया ऐसा I believe I am not into that category, but yes, I think my grandparents, they play a very important role in my life, and because of them, I am here. And indirectly, they are one of the major bridge between this dietitian role and between my personal and professional life. What exactly happened in my life before? My Jaiji, matlab मेरी दादी जी, she always used to tell my mother कि लड़की हो तो बिल्कुल एक एक्यूरेट वो होना चाहिए जिसको सिलाई कढ़ाई एंड खाना ऐसा बनाना आना हो तो दैट मीन्स वो एक्यूरेट एक परफेक्ट वुमन है. So as a result of that, my mother, she pushed me into home science college कि कुछ नहीं होगा तो अच्छी हाउसवाइफ तो बनी जाएगी, तो डॉक्टर नहीं कुछ नहीं तो एटलीस्ट हाउसवाइफ तो बन जाएगी. So चलो, it's okay. I just accepted कि कोई बात नहीं. So then I started my BSc in 2015, and by the time, because my teachers also used to tell me you are not into that stitching वाला category. You always, मैं सबके साथ बैठ के कहती थी मेरा stitching वाला काम कर दो, मुझे सिर्फ foods वाला काम is okay. That's okay with me. So that's why I started with my foods and nutrition and MSc in 2010. And my mentor, she was very impressed with my expression of my words. She always used to tell me that you have a better way of understanding and also relating those things to the daily life. बट मेरे लिए वो ज्यादा मैटर उस टाइम पे नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरा कुछ पैशन ऐसा था कि मैं सिर्फ फूड के साथ एक कनेक्शन बिल्टअप कर रही थी कि वाई दिस इज फॉर बॉडी, वाई इट हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर समवन. सो उसमें मुझे इतना रिलेशन नहीं था कि मैं इन चीजों को किसी के साथ डिलीवर भी कर सकती हूँ, किसी के साथ एक नॉलेज भी शेयर कर सकती हूँ. सो देन आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप इन पीजीआई, जैसे जैसे सिचुएशन के साथ चलता रहा. सो पीजीआई में PGI and the other kind of hospitals where I worked, I realized कि कहीं ना कहीं डाइटिशियन का रोल वैसा नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. मुझे लग रहा था कि डाइटिशियन मतलब मेजर रोल इन डाइट, एंड देयर आई रियलाइज dietitian is like another kind of a person who is just delivering food like a mess people कि आप सिर्फ खाना दे के आओ, कैलोरी काउंट करो एंड डन हो गया. So that hits me. I was expecting something else. I was expecting like a doctor who is working for a diet, and now I am just seeing the world considering a dietitian कि चलो आप सिर्फ मेस फूड के लिए हो, आपने सिर्फ खाना बनाया और दे के आ जाओ. Then that really hits my mind, and then U-turn आया लाइफ में. Then I said कि नहीं, dietitian is not a role for me. Let it be. मैं B.Ed करूँगी, मैं M.Ed करूँगी, या let me be a teacher and I start teaching and all. So I worked as a lecturer also in college, and UGC क्लियर किया, नेट क्लियर किया, PG डिप्लोमास की and everything. तो as a teacher started working. And when I got married and after baby, then everybody's used, घर का एक family support था, and they start telling me कि घर से बाहर मत जाओ, लेकिन कुछ घर से start करो, that will help you to grow also. Then माइंड में आया कि why not I start my passion again, which I used to be कि why not I then start connecting with people, जो मुझे वहां पर expectation था as a doctor की तरह dietitian का रोल करने में. Let me start with that. Then with a very small place in basement, a small setup, I started my small clinic and named it as a diet insight. As an insight of diet, what exactly is diet is all about. And on 8th March 2014, on Women's Day, then I started a little good offers for women to know about your diet. And there I start, and the people, they start
appreciating my counseling method. It was not only about weight, because people was used to be into a zone की weight के लिए dietitian के पास जाओ. Dietitian मतलब weight loss. So weight loss is all about कि dietitian calories count करेंगे और वो आपको diet देंगे, फिर हम check करेंगे weight. So उस concept को change करने में मुझे बहुत time लगा, but I think I'm blessed कि अभी काफी लोगों ने इस चीज का perception जो वो change किया. It's not only about diet, it's not only about dietitian, it's all about weight loss. It's all about a holistic approach. So by God's grace and by blessings, I'm here. Navleen, that is so beautiful. But Navleen, a lot of people in professions like dermatology, weight loss, food and nutrition, fitness, they've started going online. They're on Instagram, YouTube, Facebook, and you have a huge fan following. Now it is tough because you can't be just doing what everybody else is doing. But the difference that I see when I look at your videos is that you do it with a lot of passion, and you have this uncanny ability to connect with people. आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, and I know that people follow you like crazy. And वो कहाँ से आता है? How do you keep yourself inspired every day? Inspiration comes from the words that people they tell me every day. There is a lot of messages I receive every day, every second day, every single day I receive a feedback and a motivation and reviews and that your words changed my life. And the best day when I receive these messages, infertility का case भी जब resolve होके somebody they have something जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल उनके हाथ में होगा, और उसके बाद वो ब्लेसिंग्स की तरह उनके हाथ में है. एंड दे जस्ट मैसेज मी कि just because I've watched your video, just because I followed you and I changed my lifestyle and now here I am. So this is my मतलब मेरे लाइफ का एक expected mode जो मैंने receive किया because of you. So these words really motivates me कि अगर मेरे words कहीं ना कहीं किसी को help कर रहे हैं, it's like a blessings, it's like a karma. It's not about getting an appreciation all the time कि likes मिल जाएं और share हो जाए और I will be popular all around. It's all about getting a blessings in my karmas. अब जो karmas मैं आज collect कर रही हूँ, it's like an investment for me today. तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो मुझे आगे चल के बहुत हेल्प करने वाले हैं. That's what inspire me कि keep doing your karmas and let's see how it works in future. That is so nice. Loveleen, आपने भी बताया कि you're married and you have a baby, and then you are practicing dietitian. You are also an active influencer on social media. आपको ये सब चीज करने का टाइम कहाँ से मिलता है? टाइम मिलता नहीं है, टाइम अपने आप निकल जाता है when you pre-plan the things. I am so blessed to have a supportive family first of all, because family अगर support ना करे then you always be in a hurry कि baby के लिए ये करना है, कुछ ये करना है, and so now because I am into a joint family, so joint family is like a blessings for us. So if I'm busy in my professional life, my personal life, I'm so relaxed with my personal life कि दादी मम्मा हैं, पापा हैं, so it's okay. I am so relaxed and I can just focus on my routine. So that means it's like a blessings for me that I'm into a joint family. And secondly, it's all about when you organize the things in a pre-planned way. And I believe the secret is all about waking up early. When you wake up early, everything is all set up. What you have to do in a whole day, as morning se lekar evening tak, I divide my days into 4 parts and consider to be this is my professional life. I need to consider all these aspects of my life. My personal life after 6 o'clock to 10 o'clock, this is what the perspective of my life. So this is how I work as a pre-planning is my key, and waking up early. I think that's the best. Tell me the 4 parts. I understood the professional part and the family part 6 to 10. Yes. What are the other 2 parts? Yeah. 4 parts is all about 4 पहर दिन के 4 पहर कैसे डिवाइड कर रहे हो. सो एक पहर होता है जिसमें आप अपनी स्लीप के साथ बॉडी को रिकवर कर रहे हो. एक पहर होता है जिसमें आप गोल्डन आवर्स को स्पेंड कर रहे हो फॉर योर मॉर्निंग, फॉर योर ओन सेल्फ केयर. दैट इज योर ओन लव अकाउंट. सो व्हेन यू टेकिंग केयर ऑफ डूइंग सम योगा, डूइंग सम मेडिटेशन, डूइंग सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, दैट इज दैट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हिच गिव्स यू टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, दैट यू आर रेडी टू spread your aura to someone else. अगर आप रेडी हो, आपकी एनर्जी अगर पूरी स्ट्रेंथन अप है, दैट मींस फुल डे के लिए यू आर रेडी टू गो एंड spend your life and spend your energy to somebody else. आपका वाइब्रेशन किसी और की तरफ जाने के लिए खुद का एक टाइम स्पेंड होना बहुत जरूरी. That's the second part of my life. And third is all about professional life. From 9 o'clock, from 9:30 to 6 o'clock, it's all about the third पहर where I spend my whole time towards and focusing on a person's life. कि वो मेरे साथ कुछ spend कर रहे हैं. That means they want something from my energy कि आपको मैं कैसे heal करूँ. That's the third pair. And fourth pair जो है, the fourth part is all my personal life where I spend my time with my family, with my kid, and
getting him ready for the next day and homework karwana and all that stuff. That's the fourth part. That's the 4 parts of my life. And I always make sure it's all on a smooth way. All right. And Loveleen, can I ask you for a very, very honest answer? Hanji, please. What do you enjoy more? Mm-hmm. Practicing dietitian or social media? Practicing dietitian, definitely. Because truly speaking, मुझे लगता है social media sometimes leads to burden to someone. It leads to stress. कि ये करना है, अभी एक वीडियो डाल के देनी है just because की सब. However, I enjoy giving the content. I believe that this is something which helps me to grow over here. It's one of the helping hand. But when I spend a customized dietary routine और एक लाइफ के ऊपर वो वर्क करना, उनकी लाइफस्टाइल चेंजेस करना, working with my team, that what's encourages me to do something. But social media मुझे लगता है आजकल की लाइफ में it's more of a pressure to someone to get a time निकालो, उसको prepare करो, फिर उसको handle over करो. Sometime when I wake up in the morning, then I believe कि आज कौन सी वीडियो डालनी है, and I feel like कि ये stress तो नहीं हो रहा है कि मैं वीडियो के लिए भी कुछ माइंड में ये सोच रही हूँ. Then I feel like this is social media is one of the helping hand. 2 days in a week अपना social media के लिए time निकालना is okay, but spending more time towards a person's changing life, that is more important, and that's what I enjoy always. Yeah. So what I hear is that you derive more satisfaction out of the work that you're doing than just eating. Yes. Lovely. When you looked at nutritionists, dietitians, everyone has some nutritional philosophy. Some people believe in vegetarianism and that's what they are preaching. Some people are talking about vegan diets. There was this thing about keto diets, intermittent fasting, etc. So many things going on. Everybody has a philosophy. Is there something that you truly believe in and practice it in your life as well? I believe in connecting with my roots. So I believe whatever my parents taught me about eating pattern, whatever my grandparents taught me, ki kya khana chahiye, kaise, that's what I'm doing right now. And that's what I'm teaching. And that's why I'm spreading the knowledge about. So however, these things, intermittent fasting, veganism, or any kind of other dietary trends, it's a part of your connecting with your roots. And ultimately, what are you doing in intermittent fasting? That you're maintaining a window. And हमारे grandparents ने क्या सिखाया कि early उठो, खाओ, and then sunset तक जो है वो complete कर लो. That's like a window of 12 hours of eating window and 12 hours of fasting window. These are just the new terms which is being come up in this food industry. Otherwise हम कर तो वही रहे हैं. If you consider like a veganism या हम कुछ specific dietary routine को follow कर रहे हैं, so veganism is a preference, something जो हमारे grandparents कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताते हैं कि हम अगर milk ले रहे थे तो milk कृष्ण जी के घर पे मिल्क बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी थी, तो जो एक्स्ट्रा मिल्क होता था वो अपने लिए यूज करते थे. मोस्टली मिल्क जो है वो अपनी काउस के लिए यूज होता था. दैट मीन्स वो भी हमारा एक पार्ट ऑफ जनरेशन से चलता आ रहा है. सो वेगनिज्म में भी अपनी प्रेफरेंसेस आनी स्टार्ट हो गई, न्यू स्टडीज आनी स्टार्ट हो गई. अल्टीमेटली कनेक्टिंग विद द रूट्स आई बिलीव इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच वी नीड टू वर्क ऑन, जिसमें पता हो कि अब हमारे कल्चर में क्या चल रहा है, हमारे बच्चों को पता हो कि हमारा ट्रेडिशन कैसे पास ऑन हो रहा है, कौन सी जो रोटी है वो किस सीजन में आ रही है, किस टाइम पे खानी चाहिए, कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सीजनल आ रहे हैं. सो सीजनल एंड लोकली अवेलेबल एंड कनेक्टिंग विद द रूट्स इज व्हाट आई बिलीव कि जो हमारा एक न्यूट्रिशन का एक बेस होना चाहिए. बिकॉज अदरवाइज तो न्यू ट्रेंड्स आप किसी भी फॉर्म में ले आओ, इसी चीज को टर्म में भी मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ कि दिस इज लाइक समथिंग लाइक अ फैट डाइट जिसमें आपको फ्रूट ज्यादा है, वेजीज कम है, बट इट विल बी ऑल अबाउट योर कनेक्टिंग विद रूट्स. Right. And Naveen, when we look at medicine today, when we look at food and nutrition today, we are living in a day and age where personalization of medicine is a reality, because we truly believe that every body is different and every body responds to food, medication, etc. in a very different manner. Something that works for me may not work for you. Definitely. Now, when we keeping this in mind, and especially food and nutrition में एक होता है, मेरा डाइट आया और मेरे को फर्क पड़ गया, दूसरा कहता है यार मेरे को भी वो डाइट दे दे, किससे फर्क पड़ा है. Yes. Now, keeping this in mind, how do you prescribe diets to your people? Is there some kind of tests that you do before you prescribe any diet? Also, while you're telling me your philosophy on this, what is the importance of genomics and biohacking, keeping in mind the personalization? Okay, so customized diet and tailored made diet is what exactly a dietitian is all about. So dietitian का main role ही है कि आप किसी की life को किस तरीके से समझ रहे हो. Whosoever
person reach to us, first of all, what I believe the first thing is connecting with them with and showing all kind of empathy कि मैं आपकी सिचुएशन में हूँ तो मुझे समझ आ रही है कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको IBS है, आई कैन फील कि आज आपको लूज मोशन हो रहा है, तो आई कैन फील दैट, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू कनेक्ट. सो इफ यू आर कनेक्टिंग विद दैट पर्सन, दैट मीन्स आप उसकी लाइफ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. सेकेंडरी थिंग इज ऑल अबाउट अ साइंटिफिक रीजनिंग विच इंक्लूड्स कि आप उसको टेस्ट रिपोर्ट दे रहे हो कि आपने फूड एलर्जी करवाना है, IG करवाना है, विटामिन D, B12, कैल्शियम एंड ऑल दैट स्टफ. दैट इज अ सेकेंडरी एस्पेक्ट. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट व्हेन यू लिसनिंग टू दैट पर्सन इन अ वे दैट फील्स लाइक कि यही बंदा है जो मुझे हील कर सकता है, इसने मुझे समझ लिया, इसने मुझे एक सीक्रेट उसने जान लिया कि कहाँ पर मैं ज्यादा लैक कर रहा हूँ. अगर वो की आपने पकड़ ली है तो दैट मीन्स वो साइंटिफिक रीजनिंग है ना, उस पे वो इंडिविजुअल आप पे ट्रस्ट करने वाला है, क्योंकि आपने उसकी इन डेप्थ नॉलेज ले ली है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा था जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है. सो कस्टमाइज इज ऑल अबाउट व्हेन यू अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ दैट इंडिविजुअल, एंड वंस यू लर्न कि लाइफस्टाइल में उसके प्रॉब्लम कहाँ है, उसकी स्लीप में प्रॉब्लम है, उसकी स्ट्रेस में प्रॉब्लम है, मेंटल हाइजीन में इश्यूज हैं, उसकी लाइफस्टाइल में इश्यूज हैं कि वो नाइट शिफ्ट्स में है या नॉर्मल रूटीन में उसको प्रॉब्लम चल रहा है, माइट बी उसकी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट वी नीड टू फिगर आउट द थिंग्स. सो आपने जैसे ठीक कहा कि एक डाइट किसी के ऊपर वर्क नहीं कर सकती है, इट्स नॉट अ जनरल रूल. सो वी नीड टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द पर्सनल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन फिजिकल फैक्टर्स, द इन्वायरमेंट ही इज लिविंग इन, और आपका सीजन, कौन से सीजन में वो रह रहा है, लोकल अवेलेबिलिटी क्या है वहां पर, अलॉन्ग विद दैट उसको कितना फिजिबल है उस चीज को बनाने के लिए. समटाइम कंसिडरिंग द डाइट, अ पर्सन फील है कि मुझे डाइटिशियन ने डाइट दिया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कुक, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं. आजकल किसके पास टाइम है कुकिंग करने का, किसके पास टाइम है कि वो एक स्पेसिफिक रेसिपी बना के और वो मेजर करके वो सब खाने वाला है. सो इट्स ऑल अबाउट जब व्हेन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बंदा इतना कर सकता है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट. सो देयर इज नो स्पेसिफिक डाइटरी रूटीन टू बी फॉलोड कि ऐसे ही खा के दिखा दो एंड यू विल गेट द रिजल्ट. इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू गोज इनटू द इन डेप्थ नॉलेज, आप एक तरह से उसकी रीजनिंग जान रहे हो, उसकी एक तरह से लॉजिकली आपको पता चलेगा कि इतने अमाउंट पे वो करेगा, लाइफस्टाइल में चेंजेस चाहिए. बट द बेस इज ऑल अबाउट करेक्टिंग द लाइफस्टाइल इन होलिस्टिक वे. उसकी लाइफ में उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाना, उसको किचन मैनेजमेंट की नॉलेज देना, विच इंक्लूड्स कि कौन सा ऑयल, सॉल्ट, शुगर, फ्लावर, ये सब चीजें यूज करनी है. एपेटाइट मैनेजमेंट के बारे में उसको फोकस करना, कितना खाना चाहिए, कनेक्टिविटी विद योर गट, दैट्स नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसमें मोस्टली लोग लैक करते हैं, जिनको एपेटाइट के बारे में नॉलेज ही नहीं है. दे कंसिडर कि डाइट आया, खाओ और डन हो गया. जब तक एपेटाइट समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं पता चलेगा. प्लस अलॉन्ग विद दैट कंसिडरिंग द मूवमेंट्स एंड एक्टिविटी, द फिजिकल वर्कआउट रूटीन, कंसिडरिंग द स्लीप एंड मेंटल हाइजीन, this would be the base, but along with that considering their present lifestyle, and then we make a plan accordingly. So that is why it's considered to be a customized diet. Sorry, I forgot the second question. I was asking about the role of genomics and biohacking. Okay, so well, I am not well aware about that, but what I believe that this is something which is coming up into the world, where the people are so confused about it, and whatever the vitals we are getting nowadays, you don't know कितना reliability है. आपको मैथमेटिकली भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. What I believe कि whenever you get a certain kind of a scientific things जो आपको पेपर मेड मिलता है, and when they get the numerical done कि इतने levels पे इतना आ रहा है, you never know कितना reliable है. So what I believe the reliability is all about your symptoms, not exactly on the vitals which you are providing from the any kind of specific source. You never know कि कितना source for reliability carry कर रहा है. And do you believe that the body can heal itself? Body has the power to heal itself? डेफिनेटली बॉडी इज वन ऑफ दी, एक ऐसा इंटेलिजेंट आपका एस्पेक्ट है विच हैज अ गुड डिफेंस मैकेनिज्म. आप उसको 3 दिन मत खिलाओ, 7 दिन मत खिलाओ, बॉडी में इतना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, अल्टीमेटली आपको हेल्प करता रहेगा जब तक आप उसको एक तरह से आप उसको हिट नहीं करते हो कि इससे ज्यादा मैं आपकी केयर नहीं करूंगा. सो इतना डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में है कि अल्टीमेटली आपको हर रोज हीलिंग अपने आप में मिलने वाला है. इफ यू फास्ट फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, यू फील है कि आज जब बुखार होता है, जब फीवर होता है, बॉडी डिमांड ही नहीं करती. आपकी बॉडी कहती है रिलैक्स कर लो, अभी आप रिपेयरिंग मोड पे आ जाओ, डाइजेशन मत दो. अल्टीमेटली वो ऑटोमेटिकली रिपेयर कर जाएगी. हम व्हाट वी बिलीव, आपको बुखार हुआ है तो अभी ये खा लो, अभी सूप भी पी लो, अभी आप कोकोनट वाटर भी ले लो, हाइड्रेशन के लिए भी कर लो. आपके माइंड में होना चाहिए कि बॉडी अभी इम्यूनिटी के लिए वर्क कर रही है, हील करने के लिए टाइम चाहिए, रिलैक्स करो, अपने आप वो हीलिंग मोड पे आ जाएगी. इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट. आप जितना ट्रस्ट रखोगे, बॉडी ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करने वाली. And since you brought up this question, this word trust, I want to ask you, there are patients aate hain aapke paas. Yes. There are people who will have complete faith in you. I mean, they will just surrender and they will do exactly what you tell them to do. Yes. And there are people who are coming and trying out, कि आते हैं करके देखते हैं. Do you think faith in the healer is the magic potion? डेफिनेटली ये तो सबसे
आई थिंक दिस इज अ बेस ऑफ एवरीथिंग. आपका बिल्डिंग फॉर्म अप करने के लिए सबसे बड़ा एक नींव है. अगर वही नहीं है तो फिर बिल्डिंग खड़ी नहीं होने वाली है. सो जिनका ट्रस्ट होता है ना, उनकी पहले से पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, उनके माइंड में पहले से होता है. जैसे कहते हैं ना कि दवाई का असर अगर देखना है तो दवाई पे ट्रस्ट है तो लगेगा कि ये दवाई असर करने वाली. डॉक्टर ने कहा है कि ये स्लीपिंग की दवाई है, चाहे वो मल्टीविटामिन भी होगा, असर करेगा करेगा, क्योंकि ट्रस्ट है, क्योंकि एक प्लेसिबो है कि ये तो असर करने वाला, बिकॉज इसमें स्लीपिंग का एक मोड है. अगर उसी दवाई पे असर नहीं, आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको कहोगे कि यार नींद ही नहीं आई, पता नहीं असर कर रही है कि नहीं कर रही है. सो ये आपका बिलीफ है, ये ट्रस्ट है कि अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ स्टार्ट करोगे, ऑब्वियसली वो रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल होते हैं. रिसेंटली हमारे पास एक रिव्यू वेलनेस हमारा प्रोग्राम चलता है. विद इन 2 वीक्स, 2 and 3 weeks, उन्होंने एक बहुत लॉन्ग रिव्यू हमें भेजा कि विद इन 3 weeks आई एम फेसिंग अ ट्रमेंडस चेंज इन माई वेरिकोज वेन, और मुझे कोई पेन्स नहीं हो रही है, गट हीलिंग हो रही है, एवरीथिंग. देन वी मेक एन एनालिसिस कि जो लोग हमें इतना अच्छा अच्छा रिव्यूज होते हैं उसमें क्या कॉमनैलिटी क्या है, कि कितना ये क्या चीज है जो वर्क कर रही है. इट्स ऑल अबाउट जब उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन का ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में, जो बंदा पॉजिटिव होगा सब में पॉजिटिविटी देखेगा, जिसमें थोड़ी सी भी अंदर नेगेटिविटी कंप्लेंट मोड होगा वो सब में कुछ ना कुछ ढूंढेगा कि शायद इसमें ये गड़बड़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है. सो ऑब्वियसली दैट ट्रस्ट, दैट फेथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पहले लेवल पे वो वर्क करेगा. Lovely. Lovely. People are getting diabetes and hypertension at a relatively younger age today. पहले होता था कि 40-45 साल की उम्र में कहीं पे हाइपरटेंशन शुरुआत होती थी. अभी हम देखते हैं तो people in 30s are having hypertension, people in their late 20s are getting diabetes. कहीं ना कहीं stress और subconsciously we have started living a sedentary lifestyle, you know, and consciously नहीं है. हम चाहते हैं कि हम एक्टिव रहें, लेकिन हम unknowingly Netflix लगा के बैठ जाते हैं, 3 घंटे बैठे होते हैं. So what nutritional strategy would you recommend for every youngster so that they can avoid the delay in these lifestyle disorders? किस टाइप का खाना उनको खाना चाहिए जिससे they can remain healthy for a longer period of time? Yes, yes, yes. Well, अगर हम sedentary lifestyle की बात करें, regarding the ancestral meal plans, what they used to do, they have a window of eating. मतलब उनको पता था कि अगर हमने कुछ बाहर मतलब हमारा time period 12 o'clock से खाने का रहेगा, तो they finish up by 6:30 or 7. Why? Because they already know कि 7 o'clock तक light नहीं होगा, तो पहले finish up कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सुबह sunrise के साथ start होगा. जैसे ही हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इतना ज्यादा कि हमारे पास एलईडीज लाइट अभी रात तक भी अवेलेबल होती हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारा सर्केडियम रिदम सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है. सो दैट्स अ मेजर रोल, मेजर एस्पेक्ट फॉर डीलिंग विद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी का मेजर रीजन ये है कि दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द सर्केडियम रिदम ऑफ योर बॉडी. सो इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट रिदम फ्रॉम नेचर्स क्लॉक, की नेचर के सनराइज से लेकर सनसेट तक की अगर आप रूटीन को फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो आपको एक नरिशिंग मोड पे आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ईटिंग वेल, आप सिर्फ घर का खाना खाते हो, रोटी सब्जी दाल राइस, बट यू फील लाइक कि मुझे ब्लोटिंग रहता है, मेरा वेट हमेशा बड़ा रहता है, बिकॉज मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम नहीं इसको इग्नोर कर सकते, ऑब्वियसली एज यू मेंशन कि दिस इज लाइक हमें करना ही पड़ रहा है, राइट. सो इन दैट मोड ऑफ टाइम, व्हाई डोंट वी मेंटेन अ विंडो ऑफ ईटिंग, व्हाई डोंट वी मेंटेन अ टाइम मैनेजमेंट, कि जिसमें आपको पता हो कि कितने टाइम पे क्या खाने को मिलेगा. व्हेन यू हैव दैट सर्केडियम रिदम, व्हेन यू हैव अ लिटिल माइंडसेट, ए कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स योर हेल्थ, कि कितने टाइम पे क्या फिनिश अप करना है, दैट्स द नंबर वन थिंग व्हिच वी नीड टू कंसीडर if you are on a sedentary mode. That's the circadian rhythm, following the circadian rhythm. Number two, it's all about that how much quantity you are opting for. Sometimes what happens, we feel like कि healthy है, salad है, कोई बात नहीं, ज्यादा खा भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है. बट अगर आप sedentary हो, फिर ऑलरेडी आपका वर्क लैपटॉप पे है, आपकी फिंगर्स नहीं काम करना है, आपकी ज्यादा मूवमेंट नहीं है, सो ऑब्वियसली योर क्वांटिटी शुड नॉट बी लाइक दैट कि जिसमें पूरा एक कंटेंट कंप्लीट कर ले. माइट बी यू नीड ओनली 1 serving or a half serving. So you just need to connect with your gut. So if you don't require 2 rotis, sometimes roti is a want, it's not a need. Okay, so you need to differentiate कि मुझे want है या मुझे need है, या मुझे ये greed में मैं खा रहा हूँ या मुझे fear में मैं खा रहा हूँ कि चलो खा ही लेता हूँ, बाद में तो टाइम ही नहीं मिलेगा, बाद में मीटिंग है तो चलो 2 फिनिश कर लेता हूँ. So that means you are not considering your appetite, which is related to your vagus nerve, gut, और आपका mind connected ही नहीं है. That's why you are eating more. Overeating is one of the reasons जिसमें sedentary mode पे आप obese भी हो रहे हो. So the second aspect is all about appetite management. खाना उतना खाओ जितनी भूख है, उससे भी थोड़ा कम, मतलब 80% इतना खाओ जिसमें एयर एंड वाटर का स्पेस रह जाए. अगर एयर एंड वाटर का स्पेस है, दैट मीन्स योर बॉडी हैव अ टेंडेंसी कि आपको 2-3 घंटे के बाद भूख लगेगी, तो आप कुछ और न्यूट्रिशियस खा सकते हो. एक ही बार में कुछ खा लोगे तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज विल लीड टू लिवर इन्फ्लेमेशन. That's the number 2 aspect. And number 3 is all about, if you are on a sedentary mode, make sure that you're using standing tables. अगर ज्यादा लैपटॉप आपका एक सिटिंग पोस्चर पे चल रहा है, आफ्टर 40 minutes
स्टैंड ऑन स्टैंडिंग टेबल, अपने पास हमेशा स्टैंडिंग टेबल रखो। एंड मैंने तो बहुत ऐसे क्लाइंट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको रिक्वेस्ट किया कि अपनी कंपनीज में स्टैंडिंग टेबल्स लगाओ, वेयर देर एबल टू वर्क ऑन द, आपने सिटिंग कर लिया 40 मिनट्स का, देन स्टैंडिंग टेबल्स पे आ जाओ, मीटिंग स्टैंडिंग टेबल्स पे चल रही है, अपना काम पे चल रहा है, सो दैट एटलीस्ट आपकी लिवर, आपकी किडनी को ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो रहा है। सो कीप चेंजिंग योर पोजीशन आफ्टर 40 मिनट्स एंड देन यू टेकिंग राउंड आफ्टर योर मील, कि खाना खाने के 5 मिनट्स के बाद मूव करो। दीज आर स्मॉल ट्रिक्स जो आपने सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे वर्क करना है, एंड दैट कैन रियली हेल्प यू टू अवॉइड all these kind of diabetes and hypertension for a long run. I mean, this is such a beautiful point that you have shared, because हमारे पिछले ऑफिस में, we just moved our office and we used to have these what do you call cycling Yes. machines with a laptop Yes. stand. Yes. So that was very beautiful. Lovely. One thing that has suddenly caught the attention of everyone. I mean, medical specialists, trained experts, nutritionists have always believed in it, but suddenly COVID ke baad, everybody has become aware about maintaining their immunity. Yes. This has become about chai walon ne bhi immunity chai nikal di hai. Everything, the immunity word is like the buzzword. Yes. What natural foods, and I'm stressing on the word natural, what natural foods would you include in the diets to ensure that the immunity in a body is boosted? Yes. So I always believe in natural foods, because whosoever visit to us or whosoever approach to us, we always say we never suggest any kind of products or any supplements to boost any kind of immunity or for diabetes healing or anything. So it's all about natural things which helps you to heal. So number one in my list is all about zinc and vitamin C. These both combined together will help you. It's not only about कि vitamin C खाओगे तो vitamin C की pills आप pop कर लोगे तो आपका immunity boost हो जाएगा, because zinc will help in the absorption of vitamin C also, and vitamin C will help in absorption of iron. So these three are interrelated with each other. So if you are getting zinc from pumpkin seeds, if you're getting zinc from your walnuts, that means you need amla in a day, or you need papaya or guava in a day, so that you have a vitamin C for the better absorption of your pumpkin and walnut. Plus, if you are getting vitamin C from amla, guava, papaya, you also need a certain sources which help you to maintain your omega-3 and omega-6 balance, because this will help you to boost your immunity in a better way. So that includes chia seeds and flax seeds, which are being naturally available. और इतने inexpensive mode पे वो available होते हैं कि easily आप इसको accessible या locally available होते हैं. If you are including pumpkin seeds in the morning, having walnut as a snacking meal, having chia seeds water in a mid-morning snack, having this flax seeds in dahi, in curd, that's the best source to boost your immunity. So we don't need any kind of popping a pills for a vitamin C for immunity boosting. It's just the natural sources which is being easily available. एंड खाने के बनाने के तरीके में भी कुछ होता है, बिकॉज सी अगर हम पुराने जमाने पे देखें, आई मीन आई एम मच ओल्डर देन यू, आई हैव सीन जब हमारे पेरेंट्स व्हेन दे वुड कुक फूड, they would put masalas at different point in time. It was not that कि सब सारे मसाले पहले एक ही बारी में डाल दिए. आजकल everything is coming as a pre-packaged stuff. This bhaji mix, this is a chicken masala. So everything is just put in together. What is the difference between the two modes of cooking related to health and nutrition? Yes. So first of all is the utensils for the cooking plays a very important role. जैसे हमारे ancestors कह रहे थे कि कढ़ाई जो है वो iron की होनी चाहिए, so that आपका iron absorption जो वो better हो सके. So but आजकल हम क्या करें, iron कढ़ाई को एक उसकी maintenance बहुत चाहिए, तो that पे हम उसको कहते हैं कि नहीं, इसके maintenance ही नहीं होती है, जल्दी oxidize हो जाती है, तो let it be, हम इसको use ही नहीं करेंगे. But अगर थोड़े से efforts लगाएंगे तो iron कढ़ाई जो है वो आपको iron absorption में बहुत help करेगी. And that's why जो तड़का लगते हैं हमारे, उसमें iron की कढ़ाई में उसकी absorption better होती है. जैसे हल्दी, turmeric with iron की कढ़ाई, that's a better option, because उसका iron का curcumin जो है वो उस iron की कढ़ाई से आपको better absorb करने में help करेगा. Similarly, if you are talking about salts, तो salt को कभी भी हम पहले हम क्या करते हैं, जीरा डाला and then immediately salt डाल दिया. That's the wrong method, because उससे आपका आयोडीन सारा हवा में, सारा पानी का जो आयोडीन कंटेंट था वो आपका evaporate होके आपको nourishment nil दे रहा है. So that's why we always suggest कि जब सब्जी बन गई है तो that means आपने जो आयोडीन है, that means the source of जो salt है, वो बिल्कुल end में डालना है, so that उसका absorption जो है वो better हो सके. Similarly, the content when we make use of this turmeric, तो जब turmeric जैसे हम तड़का लगाते हैं, so turmeric with black pepper plays a very important role. तो आजकल जो राजमा मसाला, पाव भाजी मसाला and all that stuff, उसमें क्या करते हैं, वो सब चीजें जब डाल देते हैं तो they never see कि turmeric और black pepper का combination जो है वो घी के साथ रहेगा. अगर उसको घी के बिना आपने एकदम से डाला होगा तो उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा. So that's why हम घी जब डालेंगे,
टर्मरिक डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे, एंड दैट हेल्प्स इन अ बेटर absorption of curcumin and piperine from black pepper and ultimately help in boosting immunity. So I always suggest घर पे गरम मसाला जो हमारी मदर्स एक टिपिकल गरम मसाला बनाती हैं, that's the best way to boost your immunity rather having any kind of a डब्बा वाला things जिसमें आपको एक processed and packaged form में आपको वो मसालास मिल रहे हैं. So obviously वो traditional methods ही हमारी immunity को भी boost, इसीलिए हमारी दादीज नानीज 85-90s की एज पे गए हैं. हमारा टाइम पता नहीं कैसे होने वाला है. हाँ लवलीन, जब हम लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं, बिकॉज आप कभी भी, आई मीन आई एम श्योर दैट व्हेन यू लुक एट टॉकिंग टू योर क्लाइंट्स, people who are consulting you, you're focusing on ensuring that they have a lifestyle change, not just food, but lifestyle change takes a long time to become a habit. I remember one of your videos where you spoke about 66 days or something, and it takes a form of habit, but breakdowns happen. We get motivated, we get inspired looking at videos like yours, and then we start on that journey, and फिर एक party आ जाती है, travel आ जाता है, and then the breakdowns are there. What advice do you have for such people who face a breakdown? Is there something that you have observed among those people who have actually followed the diet and plans to the T versus those who give up? उनमें क्या चीज डिफरेंट थी? Yes. लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मोड पे नहीं है. कंसिस्टेंसी जितना आप लैक करोगे तब भी आप पे आउट ऑफ ट्रैक होते हो. लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं होने वाली है. आपकी लाइफ में हमेशा ट्रैवल, ओकेजन्स, वेकेशंस, सिकनेस, इलनेस ये आने वाला है. तो दीज आर लाइक अ चैलेंजेस. हम किसी भी प्लांट को, जब हम एक छोटे प्लांट में ग्रो करते हैं तो उसकी रूट्स जब ग्रो नहीं स्टार्ट हो जाती है तो हमें उसको ट्रांसफर करना पड़ता है. हम उसको जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पे उसकी रूट्स में भी कुछ आपको लगेगा कि वो खराब हो रही हैं, उसके लीव्स भी जो है वो आपको लगेंगे वो ब्रेक हो रहे हैं. सो सिमिलर विद द ह्यूमन बॉडी, कि जब आप एक अपने कंफर्ट जोन में होते हो ना, आप छोटे प्लॉट पे लगे होते हो, तो आपको लगता है इतने पॉट में ग्रो कर लेंगे चलेगा, लेकिन उसकी लाइफ छोटी होती है. अगर आपने ट्री बनना है तो ऑब्वियसली आपको वो पॉट को ट्रांसफर करने के टाइम पे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. उसको लगेगा कि उसके लीव्स भी ब्रेक होंगे, उसकी रूट्स में भी इशू आएगा. दैट मीन्स वही फेज है जब आपका ट्रैवल आता है, ओकेजन्स आते हैं, वेकेशंस एंड इलनेस एंड सिकनेस आती है, और उसी टाइम पे आप कैसे कंसिस्टेंट मोड पे रहने वाले हो. वो शॉर्ट फेज होता है. अगर आप उस शॉर्ट फेज में आप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकल के उस चैलेंजेस को फेस करना स्टार्ट कर दोगे, तो जब आपको एक ट्री की तरह प्लांट किया जाएगा तो वो ट्री जो है वो सारे फेजेस को वो फेस कर पाएगा, वो चैलेंजेस को फेस कर पाएगा. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया. उसको पता है कि अगर मैं ट्रैवल के लिए कोई इंडिविजुअल जा रहा है, उसको पता है कि ये 2-3 दिन का ट्रैवल है, 3 दिन अगर गड़बड़ होगी तो चौथे दिन घर आके फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स उसने अपना पर्सपेक्टिव रखा हुआ है कि मुझे ट्री बनना है तो मैं ट्रांसफर होने के लिए, चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी हूँ. अगर ये पर्सपेक्टिव हो कि अच्छा जी वेडिंग हमारी 7 डेज की थी, अब तो बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं, अब तो मेरी मन ही नहीं करता मुझे एक्सरसाइज करने का, मन ही नहीं कर रहा मुझे खाने का, दैट मीन्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव कि आप उसके लिए रेडी नहीं हो, आपका माइंडसेट रेडी नहीं है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड स्मॉल गोल्स, यू नीड स्मॉल चेंजेस. आपको बिग गोल्स, एक रियलिस्टिक मोड चाहिए. मोस्ट ऑफ द पीपल दे व्हाट दे डू, जब ये आउट ऑफ ट्रैक जाते हैं, दे कंसिडर अब तो मैं आज से स्टार्ट करूंगा, आज तो मैं जिम जाऊंगा, आज मैं एक्सरसाइज एंड डाइट सब आज ही स्टार्ट कर देना है. आप रॉन्ग मोड पे हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर कंसिडरिंग योर लाइफ ऑन अ बिग स्केल कि मैं एक ही टाइम पे सब कुछ अचीव कर लें. हमें छोटे छोटे से गोल्स रखने हैं कि चलो अब आउट ऑफ ट्रैक टू ट्रैक आना है तो लेट इट बी, आज मॉर्निंग का रूटीन ठीक करते हैं ओनली. ठीक है, फिर कंसिडरिंग आज आफ्टरनून नहीं हो रहा है, इट्स ओके. डिनर नहीं ठीक हो पा रहा है, इट्स ओके, बट मॉर्निंग का रूटीन बिल्कुल परफेक्ट होना स्टार्ट हो गया. देन कंसिडरिंग आफ्टर लाइक अ वीक और सो अब डिनर वाला रूटीन अर्ली होना स्टार्ट हो जाए. देन कंसिडरिंग द मिडिल पार्ट. मतलब आप 1 मंथ लगाओ लेकिन ट्रैक पे वापस आ जाओ. अगर एक ही टाइम पे पूरे दिन का सोच के चलोगे कि आज के दिन में जिम भी करना है, आज मैंने खाना भी ठीक खाना है, आज मैंने डिनर भी अर्ली करना है, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. देन देयर यू लैक योर मोटिवेशन, देयर यू लैक योर कंसिस्टेंसी एंड अगेन इनटू दैट विशियस साइकिल. अभी किया फिर छोड़ दिया हुआ. तो हमें वो शॉर्ट टर्म्स गोल पे नहीं वर्क करना है, सस्टेनेबिलिटी पे लॉन्ग टर्म के लिए करना है. और ये सारा माइंड गेम है. इट इज एक्चुअली माइंडसेट टुवर्ड्स योर हेल्थ. That is a very beautiful advice कि छोटे गोल्स रखो, अचीवेबल रखो एंड कंसिस्टेंट रहो उसको अचीव करने के अंदर. लवलीन, माइग्रेन के पेशेंट्स को कुछ स्पेसिफिक खानों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ लेना चाहिए या कुछ नहीं लेना चाहिए? माइग्रेन के लिए बेस्ट फूड्स होते हैं मैग्नीशियम रिच फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फिगर आउट कि आपका माइग्रेन किस रीजन की वजह से है. और फूड में मैग्नीशियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज माइग्रेन इज ऑल रिलेटेड टू योर ब्लड वेसल्स एंड मैग्नीशियम हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ योर ब्लड वेसल्स. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच हेल्प यू टू मेंटेन योर ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सर्कुलेशन. सो अगर आपका मैग्नीशियम डेफिशिएंट है,
कैल्शियम डेफिशिएंट है तो दैट मीन्स आपको माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है. सो फिगर आउट द थिंग्स कि वेदर यू आर डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम और ईदर बिकॉज ऑफ अ हार्मोनल डिस्टर्बेंस, कि कईयों को पीरियड्स के आसपास माइग्रेन जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, माइट बी बिकॉज ऑफ योर हाइपरटेंशन इशू, might be because you are taking lot amount of a caffeine, might be because you have a certain kind of allergy to citrus food also, जिसकी वजह से आपको migraine trigger कर रहा है. So first figure out the things कि what exactly which leads to migraine. Once you are able to figure out the things, you start working towards it. कईयों को dehydration से migraine बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आपको वो reasoning पता है, then you start working towards it. आप पानी ज्यादा पीना स्टार्ट कर रहे हो, पीरियड्स के आसपास आप आयरन चीजें खा रहे हो, रेजिन का इंटेक आप इंक्लूड कर रहे हो, आपने अपनी डाइट में नट्स एंड सीड्स मॉर्निंग में इंक्लूड कर दिया, इंक्लूडिंग पंपकिन, वाटरमेलन, सनफ्लावर, सेसमे सीड्स, और ये चीजें मैग्नीशियम को भी कवर अप करती हैं, कैल्शियम को भी कवर अप कर देती हैं. सेसमे सीड्स को आप रोटी के ऊपर डाल के ले रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत हेल्प करती हैं. इनफैक्ट हैविंग ब्लैक पेपर ऑन योर दिस सब्जीज एंड योर दाल्स इन अ soaked form, that also help because that pipeline help to relax your blood vessels. So first thing is all about figuring out the things की reason क्या है, and then start working towards it. Lovely. And Loveleen, आपके पास जितने लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, how many of them are women and how many of them are men? Considering I think 60% are women and 40% are men. Okay. 60-40. And women go through mood swings. Yes. Right. So my next question to you is, does food impact a person's mood? What is the correlation between diet and mental health? Yes. Food. And I'm not suggesting in any way that women have more mental health issues. I think they have more stresses in life. Yes. They're multitasking. So definitely. So food affects your mood, definitely. So actually food, I believe food is like a prasad. It's like a blessings for us. आप जिस तरीके से food को आप relate करोगे, food आपका behave वैसे करने वाला है. The day you are having lot amount of refined, day you are having food from outside, तो ultimately वो आपके mood को affect करने वाला है. आप इस चीज को experimental mode पे करके देखेगा. If अगर आप weddings पे कोई food खा के आते हो, आप next आपको लगता है कि bloating हो गई है, heaviness हो रहा है, constipated feel कर रहे हो, the reason could be कि वो food जो है not only कि उसमें refined oil था या रिफाइंड शुगर था, रीजन भी कि जहां पर वो फूड बनाया जा रहा था तो वो मास पीपल के लिए बनाया जा रहा था, और यू नेवर नो उसकी वाइब्रेशंस क्या चल रही थी, क्योंकि वो अपना काम कर रहा था कि सबके लिए खाना बनाना है और वो खाना मैंने सर्व करना है. वही फूड, सिमिलर फूड अगर आप लंगर में, आप गुरुद्वारे में खा रहे हो और वो वाइब्रेशंस क्रिएट की जा रही है जिसमें गुरबानी पड़ी जा रही है, तो वो कभी भी आपको नेक्स्ट डे ब्लोटिंग, हेवीनेस नहीं करेगा. ये मैं खुद अपने एक्सपेरिमेंट से बता रही हूँ. एंड आई रियलाइज दिस थिंग कि जब आप एक काम इन्वायरमेंट में खाते हो, एक कनेक्टिविटी के साथ खाते हो, तो फूड आपको कभी भी कोई मूड स्विंग्स नहीं होने देगा. जब आपका फूड जो है, आपकी रिलेशन विद फूड जो है वो पॉजिटिव नहीं है, जिसमें आप ग्रीड में खा रहे हो, आज खाना मिला है आज तो ज्यादा खाएंगे, आज राजमा चावल बहुत अच्छे बने हैं तो आज हम ज्यादा खाएंगे, तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के मूड को भी इफेक्ट करेगा. तो जब आप खुशी में ज्यादा खाते हो या गमी में खाते हो कि आज बहुत अच्छे हैं तो आज हम फीस्ट करेंगे और आज हम ज्यादा खाएंगे, और आज मुझे भूख नहीं है बिकॉज मेरा मूड ठीक नहीं है और मुझे कुछ खाने को मत दो, तो ये दोनों चीजें हमारे फूड के साथ रिलेट करती हैं. आपका गट और आपका माइंड वेगस नर्व से कनेक्टेड होता है, ये व्हाट्सएप कनेक्शन है. अगर ये कनेक्शन आपका ड्रॉप हो जाता है तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर पाती और आपको मूड स्विंग्स भी होते हैं. फूड आपको कामनेस लेके आता है, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा. सो जैसे आप अपना सोचना चाहते हो, अपने मन को समझाना चाहते हो, आप वैसे ही सात्विक खाना खाते हो. व्हाट आई बिलीव, जब हम जितना क्लीन ईटिंग करते हैं, जितना प्लांट बेस्ड डाइट और क्लीन मोड पे रहते हैं, वैसी वाइब्रेशन आप हर रोज क्रिएट कर पाते हो. जितना हम टॉक्सिक फूड खाते हैं, चाहे वो रिफाइंड खा रहे हैं या अल्कोहलिक ड्रिंक्स ले रहे हैं या फिर हम जंक खा रहे हैं, तो उतना ही बंदा एंगर, एग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करता है, बिकॉज वो खाना उसको शांति नहीं दे रहा है, उसको संतुष्टि नहीं दे रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन मोड ही नहीं आ रहा है, तो वो उसके मूड स्विंग्स में भी वो इफेक्ट करेगा. एंड मेल एंड फीमेल लेवल पे भी अगर हम बात करें, फीमेल लेवल पे जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस मंथली होते रहते हैं, दे और मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल दे ब्लेम टुवर्ड्स द हार्मोन्स कि अभी पीरियड्स आने वाले हैं तो मेरा तो मूड स्विंग हो रहा है, आप मुझे कोई बात मत करो. अगर आप फुल मंथ के लिए प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हो जिसमें आपका क्लीन ईटिंग है, आपका आयरन कंटेंट कवर अप हो रहा है, नेवर एंड नेवर फूड विल अफेक्ट ऑन योर मूड ऑल्सो, बिकॉज मूड एंड फूड इज रिलेटेड इन अ वे कि जिसमें वो फूड आपको हीलिंग के लिए काम कर रहा है. फूड ऐसी चीज नहीं है जो आपको एक नेगेटिव इमोशंस की तरफ लेके जाएगा. फूड ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रो, इट नेवर हेल्प्स यू टू कमिंग डाउन आउट इन अ वे कि जिसमें आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट देगा. रॉन्ग फूड डेफिनेटली इफेक्ट्स योर मूड इन एनी वे. That is so beautifully explained, Loveleen. Loveleen, एक और चैलेंज जो लोगों में आता है is when they are diabetic. And जैसे ही पता चलता है डायबिटीज है, आपको वैसे ही मन करता है, क्रेविंग टुवर्ड्स मीठा एंड फूड. आई डोंट नो, देयर इज सम रिलेशन टू या. सो is there something that you advise for people like these
to make it easier for them to follow a diet? Any hacks that you may have seen work? Diabetes is one of the lifestyle disorder. It's not a problem in itself. It's not a disease in itself. So सबसे पहले तो हमें ये एक acceptance लेना पड़ेगा. Lifestyle खराब हुआ तो diabetes आया. Lifestyle accurate होगा, diabetes नहीं आएगा. And why we are craving for sugar when you are into diabetic stage? Ultimately diabetes में क्या हो रहा है? खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, लेकिन आपके सेल रेजिस्ट कर रहे हैं कि मैंने ग्लूकोज नहीं लेना है. सो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ है? सेलुलर लेवल पे. अगर सेल ओपन अप हो गए तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, आपके सेल्स ने उस एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया. तो जब आपका ब्लड में ही शुगर ट्रेवल कर रहा है, एंड देयर यू चेक योर HbA1c, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कितना शुगर जो है वो अटैच हो रहा है, कितना वो बाइंड हो रहा है, एंड व्हेन यू चेक दैट एंड यू फील कि मेरा बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी में जो वो इंसुलिन रेजिस्ट कर रहा है, इंसुलिन जो है वो सेल अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. एंड व्हेन यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हेन यू इट रीचेस टू लिवर, तो लिवर क्या करता है? उसको लगता है कि अब मेरी बॉडी में इंसुलिन लेवल अगर मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो मैं कहाँ से अपनी एनर्जी कंप्लीट करूँ. तो अल्टीमेटली स्टार्ट क्रेविंग ऑफ हैविंग शुगर, क्योंकि शुगर क्या करती है? इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है. एकदम से शुगर खाओगे तो एनर्जी फुलफिल हो जाएगी. सो व्हेन यू इनटू अ डायबिटिक स्टेज, योर बॉडी स्टार्ट डिमांडिंग मोर अमाउंट ऑफ शुगर एंड क्रेव ऑफ हैविंग शुगर, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक सिम्टम है कि बॉडी जो है वो बैलेंस करना चाहती है, अपनी एनर्जी मेंटेन करना चाहती है, उसको सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, एंड देन वी क्रेव ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ अ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज फ्रॉम शुगर ओनली. सो दैट्स व्हाई द साइकिल गोज ऑन. आप शुगर खा लोगे, फिर शुगर बढ़ेगा, फिर शुगर से फिर आप फिर क्रेव करोगे, वो साइकिल चलता चला जाएगा. इट्स लाइक अ विशियस साइकिल अगेन. सो नाउ यू इन केस ऑफ डायबिटिक कंडीशन, वी ऑलवेज वर्क ऑन 3 एस्पेक्ट. वन इज ऑन सेलुलर लेवल, कि सेल्स को ओपन अप करें, एंड हाउ वी कैन एबल टू ओपन अप द सेल्स विद मूवमेंट्स. खाना खाने के 5 मिनट्स के बाद अगर आप मूव कर रहे हो तो इंसुलिन लेवल जैसे ही स्पाइक करेगा, आप नॉर्मलाइज कर दोगे. दैट मीन्स द ओनली सीक्रेट फॉर डायबिटिक कंसिडरिंग देयर डायबिटिक लेवल्स, कि खाना खाने के बाद मूव करो, 5 मिनट्स बैठो, मूव करो, शुगर लेवल नॉर्मलाइज. दैट मीन्स यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर मेंटेनिंग योर ग्लूकोज लेवल. सेकंड फॉर द डायबिटिक इज ऑल अबाउट हैविंग गेटिंग अ गुड साउंड स्लीप. रात को नींद अच्छी आ रही है, दैट मीन्स बॉडी का इंसुलिन लेवल 8 o'clock स्पाइक होने वाला है, उससे पहले बॉडी को रिपेयर कर लो. अगर बॉडी क्वालिटी स्लीप के साथ रिपेयर है, मॉर्निंग में आपका शुगर लेवल नॉर्मलाइज होने वाला है. अगर रात को नींद ठीक नहीं आ रही है, सुबह आपका फास्टिंग शुगर जो है वो बढ़ने वाला है, जस्ट बिकॉज कि आपकी बॉडी रिपेयरिंग मोड पे नहीं रही, आपकी बॉडी ने इंसुलिन लेवल को मैनेज नहीं किया है. Third is also about cortisol hormone. If your stress hormone, your overthinking, your subconscious mind continuously releasing your cortisol hormone glucose release करता है. कॉर्टिसोल हार्मोन को एक एनर्जी चाहिए. जैसे आप डरते हो, जैसे आप फियर में हो, ओवर थिंकिंग में हो, तो आपकी बॉडी ट्रिप करके ग्लूकोज निकालती रहेगी. अगर आपका स्ट्रेस लेवल मैनेजेबल नहीं है तो आपका शुगर लेवल जो है वो हमेशा स्पाइकिंग मोड पे रहेगा. सो इफ यू आर वर्किंग ऑन योर स्लीप, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर मेंटल हाइजीन, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर मूवमेंट्स एंड एक्टिविटी, तो अल्टीमेटली आपका शुगर लेवल जो वो नॉर्मलाइज हो सकता है. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन. Lovely. Laveen, आपने in many times during our conversation you referred to gut health, and आपने बोला कि the correlation between the mind and your gut needs to be there. So my next few questions are related to gut health. Is there a relation between gut health and anxiety leading to depression? Yes. In case of IBS, IBD, ulcerative colitis, the major reason is all about your depression, anxiousness, anxiety. जैसे हम कोई लेक्चर देने वाले हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें हमें कुछ एंशियसनेस हो रही है, तो ऑब्वियसली आपके गट में दैट मींस बटरफ्लाई इन योर स्टमक्स, व्हिच इज अ डायरेक्ट रिलेशन. ये आपकी बॉडी ने, माइंड ने कहा कि समथिंग इज देयर, कुछ एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके गट में जो है वो सब कुछ कोलन की मूवमेंट जो वो डिस्टर्ब हो जाती है. सो दैट वेगस नर्व कनेक्शन, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर आल्सो, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो आपकी बॉडी में आपकी लीकी गट का मेजर रीजन है. इफ यू अ पर्सन हु इज ऑन एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन फ्रॉम लॉन्ग रन, जितना ज्यादा वो अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं with anti-depression medication, they are depleting as zinc, calcium, and most importantly the iron and micronutrients. जितना उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट डिप्लीट हो रहे हैं, उतना उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से गट और प्रॉब्लम में आ रहा है. मतलब वी आर अगेन टू दैट विशियस साइकिल. ज्यादा सोच रहे हैं, सोचने की वजह से डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियों ने कैल्शियम, जिंक एंड आयरन को डिप्लीट कर दिया, लीकी गट हुआ, लीकी गट से ऑटो इम्यूनिटी आ गई, फिर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से फिर से डिप्रेशन हो गया, तो वो साइकिल फिर चला जा रहा है. सो दैट मीन्स इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर मेंटल हाइजीन, आपका गट ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो सकता है. क्योंकि 90% ऑफ केसेस जो हमारे पास IBS, IBD के आते हैं,
उनका हीलिंग मोड हमारे साथ हमेशा मेंटल हाइजीन होता है, बिकॉज दे हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उन्होंने लगता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, ग्लूटेन छोड़ दिया, लैक्टोज छोड़ दिया, हमने ये भी छोड़ दिया, हम तो अपनी बॉडी के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं कि हम खाने पीने में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन स्टिल माई आईबीएस एंड आईबीडी नॉट वर्किंग वेल। क्या प्रॉब्लम है? सो ऑल अबाउट बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग ऑन ओवर हियर, यहाँ पर आपका झाड़ू नहीं लग रहा है, दैट्स वाई वो क्लीन नहीं हो रहा है। सो इफ यू स्टार्ट वर्किंग ओवर हियर, अल्टीमेटली आपका गट हीलिंग मोड पे आ जाएगा, आपको कोई एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आई एम सो प्राउड सेइंग दिस कि हमारे पास जो केसेस आते हैं, गट हीलिंग तो होगा ही होगा, साथ में हमारे एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस छूट जाती हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पर काम किया था। उनका आईबीएस ट्रीट तभी हुआ जब यहाँ पर क्लीन हो गए, हमें कोई मेडिकेशन नहीं लेनी पड़ी, और अल्टीमेटली वो हीलिंग पार्ट हमारे पास अचीवेबल था। क्या बात है लवलीन। एक तो हो गया एंजाइटी डिप्रेशन, दूसरा कई बार हम लोगों को देखते हैं तो हम बोलते हैं यार आपके चेहरे पे बड़ा नूर है, आप यू ग्लो, योर स्किन ग्लोज, एंड दीज आर जनरली द हैप्पी पीपल। Yes. And people who are stressed, they have that fear, and then चेहरे पे दिखता है, ठीक है ना, that freshness is not there. And आपने भी बताया कि when you are depressed, when you are stressed, it has an effect on gut. Yes. So does this mean that the gut health has a correlation to a good clean skin? Yes, डेफिनेटली। आप उन लोगों को से पूछो जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके मोस्टली एक्ने होते हैं, बिकॉज जितना वो कॉन्स्टिपेटेड होंगे, टॉक्सिटी गार्बेज अंदर ही है, और जब गार्बेज ज्यादा हो जाएगा तो उसका जो स्मेल है वो हर जगह फैलेगा, वो बाहर निकलेगा, और वो गार्बेज का स्मेल जब बाहर निकलेगा तो वो स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। सो इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, इफ योर पीएच लेवल ऑफ बॉडी इज नॉट एक्यूरेट, दैट इफ यू आर एसिडिक, योर बॉडी इज ब्लोटेड ऑल द टाइम, दैट मीन्स दैट टॉक्सिटी स्टार्ट इफेक्टिंग ऑन योर स्किन, क्योंकि बॉडी अगर अंदर ही उस टॉक्सिटी को रखेगी, दैट माइट लीड्स टू कैंसर ऑल्सो, क्योंकि आपके सेल डैमेज हो जाएंगे। तो वो टॉक्सिटी बाहर निकलने के लिए स्किन के ऊपर इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू सम काइंड ऑफ एक्जिमा, या बहुत सारी स्किन इन्फ्लामेशन जो है वो आपको स्टार्ट हो जाती हैं। एंड अगर आपका गट क्लीन है, अगर आप हर रोज अपनी बॉडी की एक गार्बेज को बाहर निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपका नूर जो है वो स्किन पे दिखने वाला है, बिकॉज हेल्दी स्किन का मतलब ये है कि गट क्लीन हर रोज हो रहा है, और आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिटी, कोई बैड मटेरियल जो है वो कैरी आप नहीं कर रहे। तो गट हेल्थ के लिए क्या फूड में क्या ध्यान रखना पड़ेगा? बोथ फॉर टू पर्सपेक्टिव्स, Loveleen. One is to clean the garbage. You have a gut problem and you want to get over it, you want to get over your toxins. Second is people who may not have a gut problem, but they want to ensure that they never get a gut problem, so prevent it. So दोनों perspectives से आप if you can share with us. So about gut, now let's talk about कि gut के लिए कौन से foods हमें help कर देते हैं. Number one, it's all about your pre and probiotic sources. Sometimes what we believe कि हमें supplemented source लेना है from pre and probiotic, तो हम supplements probiotic लेना start कर देते हैं. Wrong method. Why? प्रोबायोटिक जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे अगर आपकी बॉडी में प्रीबायोटिक्स अवेलेबल है, क्योंकि प्रीबायोटिक्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड बैक्टीरिया, दैट इज प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक के सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, वी नीड प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स कहाँ से मिलेंगे? प्रीबायोटिक्स विच ऑलरेडी अवेलेबल इन अ डेली डाइट रूटीन, विच इंक्लूड्स, अगर आप रेड कांजी होली के आसपास बनाते हो और वो हमारे समझ के अप्रैल तक चलती है, दैट मीन्स रेड कांजी इज अ गुड सोर्स फॉर मेंटेनिंग योर गट हेल्थ ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ टाइम। If you are having rice kanji is a soaking of rice and having it in the morning, that also maintains a good bacteria in your body. If you are including certain kind of फर्मेंटेड आइटम जैसे कि कफीर, कंबूचा और हैविंग, ये तो हमारी फिर भी इंडियन डाइटरी रूटीन का पार्ट नहीं है, बट इंडियन डाइटरी रूटीन में जो हम फर्मेंटेड इडली, फर्मेंटेड हांडवा, उपमा, ये जो हमारी साउथ इंडियन डिशेज आ जाती हैं, वो हमारी फर्मेंटेशन मेंटेन्स अ गुड हेल्थ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम घर की बनाई हुई आजकल जो आम पन्ना की चटनीज होती हैं और हमारी पिकल्स होते हैं, इंक्लूडिंग नींबू का अचार, आंवला का अचार, वो आपकी गट हीलिंग को हेल्प करता है। अगर हम इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, वी डोंट नीड अ सप्लीमेंट फ्रॉम द आउटर सोर्सेज, इट्स जस्ट दैट कि आजकल फूड इंडस्ट्री इतना ज्यादा हमारे ऊपर वो एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा होती है कि ये खाओगे तो प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक, बंदे को लगता है मुझे तो प्रोबायोटिक मिल ही नहीं रहा है, तो लेट मी हैव दैट प्रोबायोटिक का सोर्स, तो भी मेरा गट ठीक रहेगा। वही प्लेसिबो आ जाता है। अगर वही ट्रस्ट आप अपने खाने में रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्क करेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि नेचुरल सोर्सेज से आया था। प्रोबायोटिक तो वैसे ही बन जाने थे अगर प्रीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो एक नेचुरल फॉर्म में रहेगा। एंड व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? सॉरी नहीं, मैं बात करते हैं, एक तो हो गया अपने टॉक्सिन्स क्लियर करने के लिए, और दूसरा है कि अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, कि ताकि गट हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो आपको। यस 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 यस। तो टॉक्सिकली अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये वाली रूटीन को कैसे मेंटेन करें ताकि हमारा गट हीलिंग जो वो होना स्टार्ट हो जाए। दिस इज समथिंग बेस्ड ऑन full day activities. What I believe during my whole practice, I've seen
फुल डे का रूटीन जिनका जितना रैंडम होता है ना, उतना उनका गट भी इफेक्ट होता है, उतना उनकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज नहीं होती है। अल्टीमेटली दे आर इनटू जोन कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, हरी में सब कुछ चल रहा होता है। इफ दे स्टार्ट प्लानिंग द डे इन अ वे, खाने में क्या चीज होने वाली है, सुबह की रूटीन में क्या होने वाला है, व्हेन दे हैव अ प्रॉपर डिसिप्लिन इन द लाइफ, तो अल्टीमेटली मेंटल हाइजीन होने वाला है। दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन किसी को सिखा नहीं सकते हैं, किसी को टीच नहीं कर सकते हैं, ये करो वो करो। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको ऑटोमेटिकली डेवलप करने के लिए कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड दैट प्रैक्टिस इंक्लूड्स, आप कुछ रीडिंग के लिए इंक्लूड कर रहे हो जिसमें आपको एक इंप्लीमेंट जोन मिल रहा है कि रात को मैंने कुछ रीड करके सोया था तो आज मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो जितना आप वो पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड पॉजिटिव ऑरा आप आसपास क्रिएट करते चले जाओगे, वो ऑर्गेनाइज विंडो ऑटोमेटिकली आएगी। उसके लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, उसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस या कोई लर्निंग नहीं लेना है, या कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है कि मैं लाइफ में इस चीज को कैसे हील करूं, क्योंकि ये आपकी माइंड का पर्सपेक्टिव ग्रेजुअली डेवलप होता है व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद योर ओन सेल्फ। माइंड बॉडी सोल कनेक्शन जो है वो बहुत ग्रेजुअल पेस पे आपका फॉर्म अप होता है। Hey, Loveleen, I am a coffee lover. Yeah. And मैं दिन में मेरे 3 कप अच्छे mugs coffee के हो जाते हैं. And a lot of people come and tell me that इतनी coffee मत पिया करो. Tell us about coffee. How much of coffee is okay for someone to consume, and who are the people who should avoid coffee? And if there's any specific recommendations for people who are diabetic. Yeah. Coffee is not bad at all, but it's all about the quantity and time. If you're having coffee on wrong time and wrong quantity, that means coffee आपको कंट्रोल कर रही है, आप कॉफी को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। बिकॉज कॉफी फिर आपका स्टिमुलेटर है, आपको स्टिमुलेट करती है, आपको क्रेविंग होता है, आज कॉफी नहीं पिया तो सर दर्द हो रहा है, आज कॉफी नहीं पिया तो एनर्जी बड़ी डाउन लग रही है। दैट मीन्स कॉफी आपको कंट्रोल कर रही है, आप कॉफी के ऊपर कंट्रोलिंग मोड पे नहीं हो। सो दे यू नीड टू वर्क ऑन कि अगर आपको दिन में एक बार कॉफी मिल भी रही है, यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड। जिस दिन कॉफी नहीं भी मिलेगा तो तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि बॉडी ने डिमांड ही नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क ऑन द क्वांटिटी एंड द टाइम यू आर हैविंग कॉफी। इफ यू आर हैविंग कॉफी empty stomach, that's bad because it will alter your pH level and ultimately start affecting on your gastric issues also. So you need to work towards the timings कि अगर आप कॉफी लेना चाहते हो तो evening time is the best time to have 4 or 5 o'clock. That's perfectly fine. And quantity of coffee, if you're having a big mug of coffee, that's bad. If you're having a small cup of coffee, that's perfectly fine because that will just help to give you a little good booster after a half day. मतलब आपने power nap लेके थोड़ा सा कॉफी पी लिया, आप rest of the day आप spend करने वाले हो, that's perfectly fine. Having coffee at night before going to bed just because कि मुझे काम करना है, awake रहना है, that's bad because ultimately start affecting on your hormones also. So it's all about timing and quantity, and it's not bad. If you're having black coffee pre-workouts, that's perfectly fine depending on your strength training, depending on your workout routine. It gives you a little good push to maintain the workout routine. But having black coffee unnecessarily ki chalo abhi man kar raha tha coffee pine ka, then you're having coffee, and that's bad. And if you're having a milk coffee with sugar, lot of time just to calm down your craving, just you are busy with your work and need something to eat, that's bad. So it's all about good habits with coffee. So coffee is not bad, just timing and quantity plays a very important role. And for diabetic, if you consider coffee, so coffee, as I already mentioned, it's all about timing and quantity. For diabetic also this principle works in a similar way. And also if you're having coffee, that means you are including lactose. If you are including milk into it, it is a type of sugar in it. So if you are diabetic and your levels are not being maintained, then include black coffee only. Do not have a lactose or milk based coffee. And if you want to have a coffee as a maintaining your sugar level, then you can have it by evening time. Do not have it as an empty stomach coffee you're having in a mid morning time, because that will affect on your insulin level also. So you can have it, but by timing and quantity plays an important role. And lovely, कुछ बच्चे होते हैं, small kids, they are constipated. They're regularly constipated. I mean, they don't go past their bowel for about 3 days and चौथे दिन जाते हैं. So, what is the role of food that can be altered to help these children? Yes, it's first of all the first thing which we need to work on the parents' routine. कि parents का क्या system चल रहा है, because kids they start following their parents and they start observing कि अगर पेरेंट्स कर रहे हैं एक्सरसाइज, किड स्टार्ट डूइंग दैट. अगर पेरेंट्स का कोई रूटीन नहीं है और पेरेंट्स का भी सुबह सुबह रूटीन है चाय पीने का, कॉफी पीने का, देन डू नॉट ब्लेम योर किड कि उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको ये प्रॉब्लम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वर्क ऑन द बेस लेवल कि उनके पेरेंट्स का, उनके एनवायरमेंट, फैमिली रूटीन क्या है. अगर फैमिली रूटीन एक्यूरेट है देन कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिकली जाने वाला, बिकॉज अल्टीमेटली पेरेंट्स ने अपने ऊपर वर्क किया और बच्चा उस चीज को फॉलो कर रहा है. दैट्स द नंबर 1 एस्पेक्ट. नंबर 2, इफ कंसिडरिंग कि पेरेंट्स बहुत अच्छा खाते हैं, पेरेंट्स का रूटीन, एक्सरसाइज रूटीन भी सब ठीक चल रहा है, देन अल्टीमेटली द सेकंड एस्पेक्ट कि बच्चों के केसेस में मॉर्निंग में कभी भी फोर्स करके, जो आजकल मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, आप जाने से पहले कुछ खा के जाओ, अभी दूध पी के जाओ, अभी आप ये भी खा के जाओ, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि स्कूल जाके तो उन्होंने खाना ही नहीं है, तो अभी खा लिया फिर शाम को ही खाएंगे. सो दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी. अल्टीमेटली
अल्टीमेटली व्हाट आर यू डूइंग कि रात के टाइम पे जो हमारी बॉडी अभी हीलिंग मोड पे चल रही थी, आपने इसको इतना ओवरस्टफ कर दिया कि बॉडी का कोलन मूवमेंट ही स्लो डाउन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर सुबह नहीं भी खा रहा ना, इट्स ओके, उसकी बॉडी की डिमांड है। जब वो डिमांड सप्लाई मोड पे आएगी तो अगर वो खाना स्टार्ट करेगा तो अल्टीमेटली बॉडी का एक सिंक्रोनाइज मोड आ जाएगा, एक रिदम आ जाएगी, एक म्यूजिक अच्छा फॉर्म अप हो जाएगा। तो वो सिंक्रोनाइज मोड जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। सो अगर वो स्कूल जाके खाए तो पहली चीज उसको बॉडी को देनी है सॉल्युबल फाइबर, विच इंक्लूड्स कि आप उनको फ्रूट दे रहे हो, कुछ नट्स दे रहे हो, क्योंकि वो पता है कि फर्स्ट मील जो है वो अल्टीमेटली आपके कोलन को क्लीन करने वाला है। सो अगर वो हैबिट्स फॉर्म अप कर रहे हैं कि आप सुबह उठ के अपना वाटर का इंटेक ले रहे हो, स्कूल जाने से पहले कुछ फ्रूट नट्स खा के जा रहे हो, नहीं भी खा रहे तो वहां जाके पहली चीज फ्रूट नट्स एंड सीड्स कुछ खा रहे हैं, वो पूरे दिन का आपका कॉन्स्टिपेशन लेवल जो रिड्यूस करने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल बच्चे क्योंकि गैजेट्स में ज्यादा रहते हैं, सारा ऑनलाइन काम चल रहा है, सो वो दैट्स अ मेजर रीजन क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो ज्यादा फॉर्म अप हो रही है। सो उनके लिए एक स्पेसिफिक रूटीन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो मिस करेंगे, जितना मर्जी आप क्लीन ईटिंग करा लो, वो फिर से उसी साइकिल में आने वाले हैं। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। Loveleen, I have grown in an environment where हमारे grandparents, they used to have these brown and green and blue bottles, और एक में चीनी डाल के रखते थे, एक में पानी डाल के रखते थे, and then that would be exposed to sunlight, and then they would consume that water every day in the late afternoon, और वो चीनी जो सी थी मेडिकेशन के साथ, वो पेट दर्द हो रहा है कुछ है, इनमें कुछ साइंस है या इज इट जस्ट अ प्लेसिबो इफेक्ट? नहीं, इट हैज अ साइंस, बिकॉज अगर आप जो हमारी रूट्स होती हैं, जैसे हमारी जो ग्रास रूट्स होती हैं, उसको भी हम पानी में डाल के रखते हैं, ठीक है, दैट आल्सो हैज अ मेजर न्यूट्रिशियस इफेक्ट, क्योंकि दोज रूट्स इन वाटर एंड व्हेन इट इज बीइंग एक्सपोज्ड टू सन, दैट हेल्प इन अ बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी इनटू दैट वाटर। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग दैट रूट्स, ग्रास रूट्स फुल डे, वो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके पी रहे हो, तो आपका वो विटामिन डी लेवल भी मेंटेन करेगा, बिकॉज वाटर के साथ आपका हेल्दी फैट अगर ये कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाए तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन बेटर हो सकती है। सन चार्ज्ड वाटर जो हम कंज्यूम करेंगे, वो सन चार्ज वाटर आपकी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा, आपको हीलिंग मोड पे भी रखेगा। दूसरा, जो हम शुगर की आप बात करें तो शुगर इन्फ्यूज्ड वाटर जो होते हैं, सिमिलर द कॉन्सेप्ट इज विद गुलकंद, क्योंकि उसमें भी गुलकंद में भी हमारा शुगर विद गुलाब के जो पत्ते उनको हम इन्फ्यूज करके रखते हैं, फिर उसको सन में हम उसको पूरा सन प्लेस्ड होता है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो रहा है, इट्स लाइक अ फर्मेंटेशन। तो दैट फर्मेंटेड थिंग, वो ऐसा बैक्टीरिया फॉर्म अप कर रहे हैं। शुगर जो है वो क्या काम करती है, प्रिजर्वेटिव का काम करती है, वो प्रिजर्व करती है आपके न्यूट्रिशन को। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ फूड आइटम जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको इंजरीज देता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड सर्टेन काइंड ऑफ बैड फूड, तो अगर आप गुलकंद का भी इंटेक ले लेते हो, तो वो फर्मेंटेशन ऑफ दैट बैक्टीरिया विल हेल्प यू टू हील योर गट ऑल्सो। सो दैट मीन्स दी चार्ज्ड वाटर, सन चार्ज वाटर, गुलकंद हो गया, या शुगर चार्ज वाटर हो गए, या फिर हमने किसी भी चीज को फर्मेंटेड करने के लिए सन में रखा होगा, अचार्स रखते हैं, तो वो हमारी साइंटिफिकली इट विल हेल्प टू डेवलप अ गुड काइंड ऑफ बैक्टीरिया व्हिच हेल्प्स टू हील योर गट। Loveleen, women in Bengal and Kerala seem to have very healthy hair. एक उनके बाल की क्वालिटी अच्छी होती है, they don't gray too soon. Is it got something to do with the food they consume? डेफिनेटली, इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव कि मेरी हेल्दी हेयर का भी अगर मैं बात करूं तो जो इसका सीक्रेट है, इट्स ऑल अबाउट द रेसिपीज विच इज कमिंग अप फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड जो हम नेचुरली यूज करते हैं, इंक्लूडिंग रीठा, शिकाकाई एंड फ्लैक्स सीड्स। और ये मैं सिर्फ यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए यूज नहीं कर रही हूँ, रियलिटी में ये चीजें मैं यूज कर रही हूँ और असली में मैंने इसका असर देखा है। बिकॉज इन रियलिटी व्हाट हैपेंस, जितने भी आप शैम्पूज आप यूज कर रहे हो ना, उसमें सल्फेट कंटेंट है, एंड कहीं ना कहीं किसी लेवल पे वो सल्फेट आपको चाहिए जस्ट टू क्लीन द स्कैल्प, ठीक है। अगर वो आप शैम्पूज यूज कर रहे हो, बट अलॉन्ग विद दैट if you are using flax seeds in a day and including some kind of a herbal shampoo जो घर पे बन जाते हैं, इसमें रीठा, शिकाकाई, आंवला एंड फ्लैक्स सीड, these are 4 things, इसको कंबाइन करके आप उसको भी साथ में अगर आप यूज करोगे ना, तो डेफिनेटली विल गेट अ वेरी हेल्दी हेयर, इंक्लूडिंग फ्लैक्स सीड इन दही एवरी डे। आप 1 चम्मच अगर आप ले रहे हो तो आपकी स्मूथ एंड शाइनी हेयर जो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट अच्छा रोल प्ले करेंगे। एंड केरला की साइड पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हेल्दी फैट्स, कोकोनट इजिली अवेलेबल होता है, एंड दे हैव अ स्टेपल डाइट एज राइस। और राइस और कोकोनट, ये दोनों चीजें क्या करती हैं, दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ अ रेजिस्टेंस स्टार्च, एंड कोकोनट हैज अ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये दोनों चीजें क्या करती है, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ दोज काइंड ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी हेयर के लिए रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग ओमेगा 3 भी है, इंक्लूडिंग आपका ये आपके जिंक कंटेंट भी है उसमें, आयरन भी उसमें आ जाता है। तो अल्टीमेटली दिस कोकोनट, राइस, ये उनकी हेल्दी हेयर का सबसे बड़ा सीक्रेट है। वाह, क्या बात है। लवलीन, मेरे को पता है आपके 11 बज गए। आई हैड टाइम फ्रॉम 10 to 11. कैन आई टेक 5 minutes more? नो प्रॉब्लम, प्लीज हाँ, गो अहेड।
A lot of people keep popping pills to Yes. lose weight. बहुत सारे लोग आजकल ये शुरू हो गया कि ये आयुर्वेदिक है, ये है, and some of the pills you you feel full so that आपको भूख ही ना लगे तो आप खाना अवॉइड करते हो. What is your opinion about these pills? यस, पॉपिंग अ पिल इज अ शॉर्टकट जो आजकल के लाइफस्टाइल में, क्योंकि हम इतना ऑनलाइन, हमें रील्स की आदत हो गई है ना कि 10 सेकंड में सब कुछ मिल जाता है ना, 10 सेकंड की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फटाफट फटाफट हमारा माइंड स्क्रॉल होता रहता है. उस स्क्रॉलिंग मोड पे अभी हमें लाइफ में भी वो शॉर्टकट चाहिए कि फटाफट से कुछ मिल जाए, वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए. तो इसी चक्कर में हम क्या करते हैं, फूड इंडस्ट्री ने इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठाया एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ दिस. क्योंकि पॉपिंग पिल्स एक ऐसा मेथड है जिसमें उनको खिला दो, खाना मत खिलाओ, नेचुरल सोर्सेज आपके रिजर्व मोड पे रहेंगे, बाकी आपकी पिल्स चली जा रही हैं. हम अपने बच्चों को भी ये मैसेजेस दे रहे हैं, अगर आप पिल्स को पॉप करते रहते हो कि आप खाना मत खाओ, आपने आगे चल के तो पिल्स लेनी है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी वाइटामिन की भी गमीज खाते रहो, ठीक है. अल्टीमेटली वो कर क्या रहे हैं, पॉपिंग पिल्स क्या कर रही है, वो पिल्स जब आपकी एपेटाइट को लो डाउन करती हैं, दैट कट डाउन द कनेक्शन बिटवीन योर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. ये एक साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे हाइपोथैलेमस जो यहाँ पे ब्रेन में है, वो आपके लेप्टिन, एक एपेटाइट हार्मोन होता है, उसको मैसेज देता है कि कितने अमाउंट पे आपने स्टॉप कर देना अपना खाना. जब भी आप पिल्स यूज करते हो ना, तो लैप्टिन हार्मोन एंड ग्रेलिन हार्मोन जो कि आपके हंगर हार्मोन्स हैं, वो रिलीज करना बंद कर देते हैं. उनका रिलीजिंग मोड ही आपने कट कर दिया, तो आपको आपकी एपेटाइट की नॉलेज ही नहीं रहती है कि मुझे कहाँ पे किस लेवल पे स्टॉप करना था, या मुझे भूख ही नहीं लग रही है. जब आप ये कनेक्शन आप आर्टिफिशियली स्टॉप कर रहे हो पिल्स को खा खा के, तो जिससे आपका एक तो मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो डाउन हो जाता है, आपका लिवर इन्फ्लेमेशन की तरफ स्टार्ट हो जाता है, गट जो है वो लीकी गट फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है. फिर जब तक आप ये पॉपिंग पिल्स करके अपना मसल लॉस कर लेते हो, फिर आप खुश हो जाते हैं, हमारा वेट लॉस हुआ, वेट लॉस हुआ, और अल्टीमेटली जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं, उनका मसल लॉस हुआ होता है, फैट लॉस हुआ नहीं होता है, देन दे कंसिडर अब हम डाइट कर लेते हैं, अब बताओ कि हम किस तरीके से वेट लॉस करेंगे. सो फर्स्ट दे नीड टू एक्सेप्ट, आपने गलतियां की हैं, तो गलतियों को पहले एक्सेप्ट कर लो कि उसको रिवर्स करने में, उसको मोड पे लाने के लिए टाइम लगने वाला, पेशेंस रखो. अब वो स्टेज आ चुकी है जिसमें आपके कनेक्शंस ही नहीं, आपने तारें काट दी हैं जहां पर मुझे कोई मोड ही नहीं है कि मैं कनेक्शन कहाँ पे बिल्टअप करूं. सो अगर आपने स्टेज पे अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया कि जिस लेवल पे आप हो, और एक हेल्दी मोड पे आप स्टार्ट कर रहे हो, एक मसल स्ट्रेंथनिंग आप स्टार्ट कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को क्लीन मोड पे स्टार्ट कर रहे हो, वो एक्सेप्टेड बॉडी जो आपको लॉन्ग रन के लिए हेल्प करने वाली है. अगर शॉर्टकट के फॉर्म में फिर से आप कईयों को होता है, जो लोग पिल्स पॉप करते हैं ना, उनमें पेशेंस नहीं होता है, वो रुक ही नहीं सकते हैं, उनको लगता है कि ये डाइट वर्क ही नहीं कर रही है, मैं तो कितना कुछ कर रहा हूँ, मैंने तो सब कुछ रोक दिया हुआ है, फिर भी वेट नहीं जा रहा, वेट नहीं जा रहा, क्योंकि आपने पहले भी इम्पेशेंट होकर अपना शॉर्टकट लिया, अभी भी आप इम्पेशेंट हो, और अभी भी आपको ये लग रहा है कि शॉर्टकट क्या मिलेगा और वेट लॉस होने वाला है. सो फर्स्ट उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि वेट इज नॉट द थिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन, वेट इज जस्ट द नंबर. हमें इससे पहले हेल्थ गेन करना है. अगर एक बार हेल्थ गेन हो गया, आपकी एनर्जी, स्टेमिना, एक्टिवनेस, लाइटनेस, डाइजेशन बेटर हो गई, तो अल्टीमेटली बाय प्रोडक्ट आपका वेट आएगा, चाहे वो 1 साल में आए, 1.5 साल में आए, 2 साल में आए, क्योंकि आपने वो चीजें पाइल अप की हैं. सो इट विल टेक टाइम. सो पॉपिंग पिल इज नॉट द सोल्यूशन, इट जस्ट द शॉर्टकट. Okay. Loveleen, when we talk about liver health, I've been talking to a lot of doctors because of my profession. I get a chance to speak to a lot of medical professionals, and I realized that एक हमारा था कि हम alcohol consumption की वजह से liver problem हो रही है. Yes. But it has now been proved that alcohol is just one small aspect. There are so many people who have not consumed alcohol or touched alcohol in their life, but it is the food habits or the kind of food that they're eating that is leading them to have bad liver or fatty liver. In fact, fatty liver is like a pandemic in our country today. Yes. So what is the food advice that you have for people to ensure that they are ensuring their liver health? And the good thing is that it has, it can become better. It's not that reversible नहीं है. Yes, So खाना कैसे खाना चाहिए liver के हिसाब से? लिवर इज वन ऑफ द ऑर्गन की जो 500 से ज्यादा इंफ्लेमेटिक रिएक्शंस कर रहा है, जिसमें आप ये कह सकते हो ऐसा इंजन है, अगर ये डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे ऑर्गन ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएंगे. सो लिवर का जो सारा रोल है, दैट ऑल डिपेंड्स कि आप फुल डे की एक्टिविटी कैसे मैनेज कर रहे हो. बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि लिवर के लिए आपकी 3 ऑर्गन्स में 3 सिचुएशंस होती हैं जब लिवर आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में जाता है. नंबर 1, एक आप सेलुलर लेवल पे जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस मोड पे आ जाती है और कहती है कि मैंने अब खाना एक्सेप्ट नहीं करना है, सेल्स उसकी एक्सेप्टेंस लेना बंद कर देंगे, फिर आपका खाना जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके लिवर में जाता है. तो अगर हम साइंटिफिकली समझें, अगर आप ओवर कार्ब्स खा रहे हो, रोटियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, राइस ज्यादा चल रहे हैं, आप रिफाइंड ज्यादा खा रहे हो, और सेल्स ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, तो उसका स्टोरेज मोड कौन करेगा? लिवर करेगा. सो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसने स्टोर करके आपकी हेल्प कर दी कि चलो आपने एक्स्ट्रा खा लिया, आपने डैमेज कर लिया, कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, एंड लेट मी स्टोर इट फॉर यू. जब भी आप स्टार्व करोगे, जब भी आप कोई स्टार्विंग मोड पे एक्सरसाइज करोगे, तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ.
अगर फिर भी आपका लाइफस्टाइल वैसा है कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो और आपको लगता है कि मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही खराब चल रहा है, तो वो लिवर भी बेचारा थक जाता है एंड फील्स लाइक कि मैं और काम नहीं कर सकता हूँ, मैं कितना आपकी हेल्प कर सकूं। आप मुझे स्टोरेज दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है उस चीज को हैंडल करने की, और लिवर उस चीज को रेजिस्ट कर देता है। और अल्टीमेटली फिर जो रेजिस्ट मोड पे जो ग्लूकोज होती है ना, वो एडिपोज टिश्यूज में जाके आपका फैट भी गेन करेगी और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की फॉर्मेशन करेगी। मतलब आपने लिवर को ग्रांटेड ले लिया कि जितना मर्जी करे जो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चले जाओ। तो अगर आप उसको ग्रांटेड नहीं लोगे तो क्या होगा, वही एनर्जी जो ग्लाइकोजन आप स्टोर कर रहे हो, अगर आप उसको एक्सरसाइज में कन्वर्ट करके मसल्स गेन कर लोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप ज्यादा कार्ब्स खाओ, इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप अपनी बॉडी को मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स देना स्टार्ट कर दो, एक गुड क्वालिटी प्रोटीन देना स्टार्ट कर दो, जिसमें हम अमीनो एसिड की बात करते हैं, नॉट लाइक कि आप नॉन वेज ही खाओ तो आपको प्रोटीन मिलेगा। अमीनो एसिड मतलब कंप्लीट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन फ्रॉम वेजिटेरियन सोर्सेज ऑल्सो। आप कार्ब्स को अगर मॉडरेट कर रहे हो, प्रोटीन को बढ़ा रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी को वो बैलेंस चाहिए फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन। समटाइम पीपल फील लाइक कि लिवर के लिए हमने जी कार्ब्स बंद कर दिए, हमसे प्रोटीन डाइट पे आके, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि अल्टीमेटली आपने बॉडी को गट हीलिंग नहीं किया, फिर आपको एसिडिटी भी होगी, ब्लोटिंग भी होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, बिकॉज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जा रहा है। सो लिवर नीड्स अ रिलैक्सेशन। तो लिवर को मॉडरेट कार्ब्स करें, प्रोटीन का कंटेंट जो है वो अपने लेवल्स पे लेके आओ अमीनो एसिड्स में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिवर को रिलैक्स करो। लिवर रिलैक्सेशन मतलब सनसेट या सन इतने टाइम तक खाएं ताकि बाद में बॉडी रिकवरी मोड पे आ जाए, बाद में लिवर को लगे कि मुझे गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, अब मुझे ठंडा होना, सुबह के लिए मैं रेडी होने वाला हूँ। सो अगर आप वो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगा रहे हो और कॉन्टिन्यूसली उसको खिलाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बॉडी फिर हार्मिंग जोन में जाने वाली। Now, before I let you go, Lavleen, I have a few myths or realities I don't know. I want you to help me figure that out. Yes, yes, You know, yes. so one is is it a myth or not that eating only once a day can help you lose weight? वेल इस मिथ को मैं फैक्ट्स में कन्वर्ट करूँ या लॉजिकली मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली ये क्या है। वन मील अ डे इज, इट डिपेंड्स फ्रॉम बॉडी टू बॉडी एक्चुअली, कस्टमाइज्ड डाइटरी रूटीन। वन मील अ डे अगर वो खा रहे हो जिसमें आपकी बॉडी का नरिशमेंट ही नहीं है, दैट मीन्स यू आर लूजिंग योर मसल्स, यू आर लूजिंग योर नरिशमेंट, एंड अल्टीमेटली वो आपको हार्म करेगा, विच इज लाइक अ फैट डाइट। आपने ये सोचा कि आज मैं एक टाइम का खाना खा लूंगी, बाकी टाइम पे भूखे रहेंगे ताकि वेट लॉस हो जाए, रॉन्ग अप्रोच। दैट मीन्स आपने बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो कर दिया, मसल आपका स्केलेटन मसल मास खत्म हो चुका है, आपका सैग्ड फैट आ जाएगा। सो दैट्स टोटली रॉन्ग। वी नीड टू वर्क ऑन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ जहाँ पे आपकी बॉडी को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे डिमांड और सप्लाई दो। इफ यू आर लिविंग विद योर सेल्फ फॉर 24 आवर्स, आप 24 घंटे अपने साथ, और आपको पता है कि बॉडी डिमांड कब कर रही है और सप्लाई कब देना है, दैट मीन्स यू माइट नीड फूड आफ्टर एवरी 2 आवर्स, और यू माइट नीड अ फूड आफ्टर एवरी 3 और 4 आवर्स, और यू माइट नीड फूड की जिसमें आपको लगे कि सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बीच में पानी पीते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, दैट ऑल्सो सूट्स फॉर समवन। सो द स्ट्रैटेजी इज टोटली डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट वन मील अ डे एंड कंसिडरिंग स्टार्विंग योरसेल्फ जस्ट टू रिड्यूसिंग योर वेट इज टोटली अ रॉन्ग अप्रोच। सो अपना कस्टमाइज्ड डाइटरी रूटीन एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म में करना बहुत जरूरी है, जस्ट टू नो कि आपके लिए कौन सी चीज वर्क कर रही है। So this is a myth. This Yes, is yes, a that's myth. a myth. Yeah. Yes. In order to lose weight, you must stop eating after specific hour during the evening. मतलब sunset से पहले खाना खा लो. Is that a right thing to do or a wrong thing? देयर इज अ लॉजिक एक्चुअली, बिकॉज अगर हम एक अप्रोच, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि इंसेस्टर्स का एक टाइम जोन होता था कि वो सनसेट तक खा लें और सुबह फिर उनकी बॉडी जो है वो रिपेयरिंग मोड पे आ जाए। सो दैट व्हाट आई आल्सो बिलीव दैट कि अगर आप अपनी बॉडी को पूरा दिन काम करा रहे हो, सनराइज से लेकर सनसेट तक आप डाइजेशन का काम करवा रहे हो, और रात को भी आपको लग रहा है कि मैं डाइजेशन करवाते रहेंगे, फिर तो लिवर डैमेज होने वाला है, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सनसेट के आसपास ही अपना वर्किंग जोन जो वो शट डाउन करना स्टार्ट कर देता है। आपके पैनक्रियाज, आपके लिवर, ये दो ऑर्गन्स हैं जिसका इंसुलिन रिलीजिंग पावर सुबह होता है, शाम को नहीं। अगर आप सर्केडियम रिदम को फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली वी नीड टू फॉलो दैट एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ कि जिसमें आप सनसेट तक खाओ, उसके बाद बॉडी को रिपेयर करो, रिकवरी करो। दैट्स अ सिम्टम एंड साइन ऑफ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल। जो लाइफस्टाइल डिसिप्लिन होगा उसको पता है कि मैं सनसेट तक खा के बाद में रिकवर कर रहा हूँ। जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में उनको लगेगा कि काम है, रात को मीटिंग्स हैं, रात को ये भी करना है, ऑब्वियसली उनकी विंडो ज्यादा एक्सटेंडेड मोड पे जाएगी, एंड दैट्स वे दे आर फेसिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑल द स्टफ। वो मेजर रीजन है। इन केस अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें आपको रात को जागना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मजबूरी है कि हमें करना पड़ता है, इन दैट केस ऑलवेज मेक श्योर कि आपका सनसेट तक एक हैवी मील हो जाए। उसके बाद बॉडी को उतना खिलाओ जिसमें नाइट स्नैकिंग मील्स चल रही है, जिसमें सिर्फ आपका ब्रेन फंक्शनिंग चल रहा है, ताकि आपको रात को नींद अच्छी आ जाए।
So that means it's like an option for some days, but preferably if you are disciplined, if you love yourself, if you want कि आपकी health हमेशा ठीक रहे, तो try to maintain that window कि आप sunset तक खा के बाद में body को recovery and repair mode पे रखो, so that 10 PM पे melatonin naturally release करता है sleeping hormone. उस टाइम तक अगर आप सोना स्टार्ट कर दोगे, आपको कोई बीमारी होगी नहीं, आपको कोई लगेगा ही नहीं कि मुझे कोई जरूरत पड़ रही है किसी पिल्स के लिए. It's all about a circadian rhythm to follow. And fruit कौन सा है, खाने से पहले खाना चाहिए या खाने के बाद एज अ डिजर्ट? वेल फ्रूट का बेस्ट टाइम रहता है जब हम मॉर्निंग में एज अ स्टार्टर ऑफ द डे रखें. व्हाई? बिकॉज एम्प्टी स्टमक में आपका इंसुलिन लेवल 8 AM पे सबसे ज्यादा स्पाइक कर रहा है, एंड इफ यू हैविंग ग्लूकोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स द बेस्ट थिंग. खाना खाने से पहले जो है वो आपकी रॉ वेजीज होनी चाहिए. व्हाई? बिकॉज सैलेड वोंट हैव अ फ्रक्टोज, और हमारी बॉडी में ना एनिमल्स की तरह फ्रक्टोज को ग्लूकोज करने की इतनी टेंडेंसी नहीं है. ठीक है, हमारी बॉडी में सेलुलोज एंड फ्रक्टोज, ये दो तरह के जो कंटेंट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो एनिमल्स में ज्यादा है, हमारी बॉडी में कम है. इसलिए हमारा जो फ्रूट का कंटेंट है, तो फ्रक्टोज की जो शुगर है, वो मॉर्निंग में होगी तो बेस्ट होगी, जिससे बेटर एब्जॉर्प्शन है. खाना खाने से पहले नॉन फ्रक्टोज फूड खाया जाए. लेकिन अगर आप स्वीट की बात कर रहे हो कि हम मैंगो बाद में खा लें या फिर हम खाना खाने के बाद कोई फ्रूट खा लें, तो एट दैट पॉइंट व्हाट आई बिलीव कि बेटर है कि आप बेकरी नहीं उठा रहे हो, आप केक्स नहीं उठा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आप पेस्ट्रीज नहीं उठा रहे हो पोस्ट मील के बाद, आपने अगर मैंगो का एक स्लाइस ले भी रहा तो वो बुरा नहीं है समटाइम्स. बट अगर आप इसको ग्रांटेड लेके हर रोज आप मैंगो खाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट्स बैड. सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्रेविंग हुई, आपने बेकरी नहीं उठाया, एटलीस्ट नेचुरल को कभी आपने उठा लिया, दैट्स ओके समटाइम्स. एंड लास्ट myth or a reality that you have to tell us कि जो उनसे बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग हैं, जिम जाने वाले लोग हैं, वो सुबह उठ के 5-6 अंडे खाते हैं. इज दैट ऑल राइट और इज इट नॉट एडवाइजेबल? वेल देखो, नेचर ने हमें जो चीजें दी है ना, उसकी एक लिमिट रखी है. अगर आप नेचर के साथ प्ले करना स्टार्ट कर दोगे ना, नेचर आपके साथ खेलना स्टार्ट कर देगी. सो नेचर ने आपको एक स्पेसिफिक फूड, एक प्रॉपर एक रूटीन दिया है बैलेंस्ड फॉर्म में. जस्ट बिकॉज यू वांट टू बिल्ड अप योर बॉडी और आप प्रोटीन का सोर्स लेके आप एग्स का इंटेक ले जा रहे हो, तो एग्स समटाइम्स क्या व्हाट हैपेंस, एक्सेस अमाउंट ऑफ एग्स आल्सो स्टार्ट अफेक्टिंग ऑन योर रीनल फंक्शनिंग. बिकॉज अगर, एंड इट आल्सो डिपेंड्स कि फुल डे का रूटीन क्या है, आपने फुल डे के रूटीन में किस तरीके से डिवाइडिंग जोन रखा हुआ है. इट वर्क्स फॉर समवन बिकॉज दे फील लाइक कि हम सुबह एग्स खा लेते हैं, फिर हमारा कुछ नॉन वेजिटेरियन रूटीन होता है, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर्स हैं, उनका प्रोफेशन ऐसा है, एंड दे नीड दैट काइंड ऑफ अ रूटीन. बट अगर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं जिम कर रहा हूँ और मैं सुबह सुबह 4 अंडे 6 अंडे खा के मैं स्टार्ट करूँ, या मैं पोस्ट वर्कआउट में ले लो, दैट मीन्स यू आर वर्किंग इन अ रॉन्ग वे. आप सस्टेनेबल अप्रोच पे वर्क नहीं कर रहे हो, वो सस्टेन नहीं करेगा और आपकी रीनल मतलब आपकी किडनी के ऊपर जो इफेक्ट कर सकता है. सो देयर यू नीड टू चेक विद योर रीनल प्रोफाइल एंड वर्किंग टुवर्ड्स इट. Lavleen, it has been such a pleasant conversation. I mean, honestly, मजा आ गया. मतलब, I have taken more time than what I had planned, but I could go on for next hour or so. But my key takeaways from this conversation are very beautiful. That one is on the personal front. I mean, how you have taken your passion to make it into your profession, and एक रेवेन्यू सोर्स प्रोफेशन बनाने के अलावा आप द गुडनेस दैट यू स्प्रेडिंग on social media is commendable. So congratulations to you for that. Thank you. And and what I could sense is that food and nutrition is not and should not be limited to just weight loss. Yes. It should be about healthy living. Yes. And that is the biggest message that I take away from this conversation. This third thing that you spoke about was the inner vibration. Yes. That food gives you the strength to create that vibration, and खाने में vibration है. Like Yes. आपने जो बताया कि food is a prasad, it is a blessing. Yes. And how you experimented food in a restaurant or in a banquet versus food at a langar. That is such beautiful. And last but not the least, that that faith gives you the strength to remain positive and create that positive vibration, and that leads to healing. Yes. What a beautiful message. Thank you. Lavleen, thank you so much for taking our time to speak with us Thank today. you so much. Thank you so much for giving me this opportunity, and I'm looking forward for further opportunities also. Thank you so much.